Wishing you all a very good morning to all my dear students and my little friends. Hopefully, you all are doing good, safe at home, and also enjoying your online studies. So, guys, in this beautiful morning, you all are welcomed in grade 5, my social studies classes. And today we are going to continue with block 12, that is rights and duties. Hopefully you all haven't completed your application work and also study our today's topic. Guys, when you are already studied our topic before watching the video, and again after watching the video you study that topic, the concept will clearly understand. So our today's topic is our duties, and our aim for today's topic is recognize some important duties. Yesterday we study about our rights, and today we will know about our duties. So we need some resources. These are as to content book and notebook. So anybody know what is the difference between duties and rights? Tell me in the same place, school, yeah. And we have some keywords: fundamental, yesterday wala, and duties. So guys, ऐसे तो we all have some duties in our house, in our school. Like here, it is my duty that I will show you your question of the day. And your question of the day is, which of the following statement is our fundamental duty? Listen again. Which of the following statement is our fundamental duty? And you will get all 4 options in your forms app. So guys, have a look. We are going to start our today's topic, and our today's plan will again start with some introductory questions. You know what? Why I'm asking introductory questions to you? I want to check your previous knowledge. Okay? So tell me, what things do you enjoy doing? आप लोगों को क्या करना पसंद है? क्या करने में मज़ा आता है? आप enjoy करते हैं? Is there something you may not like doing but have to do? बिल्कुल होगा. पसंद तो नहीं है बट मैम करना पड़ता है. वो क्या है? And what are they? So share all your answers with me in school, yeah. Okay guys, so in our today's class, what we are going to do? Yes, we are going to learn about our duties. Duties at home, in school, and for our country. So if you know about duties, anything, so you can write in your notebook. Take your time. I hope you all have done, and you all have write your duties in school and in
home. So now we will discuss how are your duties at home different from those in school. चाहे टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट हों या कोई भी, सबके पास ड्यूटीज़ हैं, घर में भी हैं और वर्किंग प्लेस में भी हैं. डिफरेंस क्या है? लाइक इन योर होम you make a bed and clean your room. You separate clothing for washing, etc. उसके बाद उनको ड्राई करना है, देन कलेक्ट करना है, देन फोल्ड करना है, समटाइम्स आयरन भी करना है, देन कीप दो सेफ इनसाइड योर अलमीरा. Fold clean clothes and put them away. Already I told you na. And make own sandwich or simple breakfast and clean up afterwards. Sometime ऐसा भी होता है कि आपको अपना ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स खुद प्रिपेयर करना होता है. आफ्टर डैट you have to clean up all your mess. So what are you doing in a school as a duty? Like you obey the teachers, maintain discipline in the class, keep the school neat and tidy, greet everyone with a smile. These are your duties in a school. ओके, सो इनमें से कितनी ड्यूटी आप पूरी करते हैं या कौन सी ऐसी ड्यूटी हैं जो मुझे नहीं पता, आप बताएंगे. देन गाइस, विच ऑफ देम डू यू लाइक टू डू? जो केवल लिखी हैं वो नहीं, उनके अलावा भी विच ऑफ देम यू लाइक टू डू. ये आंसर तो आप ही को देना पड़ेगा. इज इट? एंड कुछ और भी होंगी जो यू डोंट वॉन्ट टू डू. सो विच ऑफ देम डू यू हैव टू डू बट डोंट एंजॉय डूइंग? मतलब करना तो पड़ता ही है, लेकिन वो करने में आपको मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता. तो वो कौन सी ड्यूटी हैं जो आपको करनी पड़ती हैं लेकिन करना अच्छा नहीं लगता, और क्यों करना अच्छा नहीं लगता ये भी आपको बताना पड़ेगा मुझे. नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं. लाइक इफ़ यू टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे घर में कुकिंग करना बहुत पसंद है, स्टिचिंग करना भी पसंद है, एंड डेकोरेशन आई ऑल्सो लाइक इट. एंड वॉट आई डोंट लाइक आई थिंक वैसे ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे करना पसंद ना हो. मुझे सोना भी बहुत पसंद है. सो नाउ our next question is ready. What duties do you have towards your country? स्कूल की ड्यूटी हो गई, घर की ड्यूटी हो गई, बट वी ऑल हैव सम ड्यूटीज टूवर्ड्स अवर कंट्री. व्हाट आर दीज? सो दीज आर some of our duties towards our country are respecting national anthem and also our national flag. These are also our duties towards our country. And protecting wildlife and environment, respecting women, staying together as Indians, and fighting for our country if there is a war. These all are our duties, and these are our fundamental duties. Okay guys, so everybody listen now. You will tell me one by one what I told you that is not shown in the on the screen. You will tell me in the school, yeah. Then guys, why is it important? Okay, so first see fundamental duties: trust, equality, freedom, peace, justice, rule of law, dignity, and prosperity.
So guys, now you can also know this truth that if you want to know more about your duties that is mentioned in your constitution, so you have to go part 4 article 51A, and there you will get all your duties in details. Okay guys, so if you study, don't forget to tell me. Now guys, your fundamental duties, what are these? थोड़ा स्मॉल शब्दों में या इजी शब्दों में देख लेते हैं, है ना। और जो ड्यूटीज़ अभी हमने देखी हैं पॉइंट वाइज, इनको थोड़ा सा हम अच्छी तरीके से समझ लें। लाइक वी मस्ट रिस्पेक्ट वीमेन, चाहे वो छोटी बेबी हो, बड़ी बहन हो, मम्मी हो, ग्रैंड मदर हो, या आपकी मैम हो, या कोई भी और हो जो आपको कहीं और मिले। ऑलवेज रिस्पेक्ट वीमेन। देन वी मस्ट प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स एंड पार्क। जनरली मैंने कुछ लोगों को देखा है कि पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहाँ कुछ लिख के चले आते हैं, पिक पोस्टर चिपका देते हैं। पार्क में जाते हैं, आप जैसे बच्चे, मैं सबको नहीं बोल रही, तो क्या करते हैं, चिप्स खाया, चॉकलेट खाई, रैपर वहीं फेंक देते हैं। दैट इज़ वेरी बैड। वहाँ डस्टबिन्स भी होते हैं तो उनका यूज़ कीजिए, और अगर कोई दूसरा करता है तो उन्हें बताइए। ऐसा नहीं करते, नहीं मानते, खुद उठा के फेंक दीजिए। मुझे स्कूल में देखा है ना कि मैं चलते फिरते अगर आप लोग के चिप्स चॉकलेट के पैकेट दिखे तो मैं खुद उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो आप भी डाल सकते हैं, ये तो हमारी ड्यूटी है टूवर्ड्स आवर कंट्री। देन वी मस्ट स्टे यूनाइटेड, हमको एक होके रहना चाहिए। वी डोंट फाइट और क्वेरल विद ईच अदर। स्टोरी सुनी है ना, एकता में शक्ति, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। देन वी मस्ट ओबे लॉज, हमको अपने देश के लॉज या नियम कानून का पालन करना चाहिए। जैसे कि रोड रूल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमको लेफ़्ट चलना है या राइट चलना है। इफ़ वी आर पेडेस्ट्रियन तो हमें कहाँ चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग पे चलना है। अगर एक स्क्वायर या चौराहा है तो हमको ट्रैफिक लाइट फॉलो करनी है। दीज आर आवर laws, or we can say these are rules, common rules we all should follow. Then we must respect our national flag and national anthem. जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल होता है लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो मैंने देखा है बच्चे हाथ में भी तिरंगे का बैंड पहन आते हैं, है ना, गालों में कलर लगा लेते हैं। चलो अच्छा है, सब देशभक्त हैं आप लोग, लेकिन जो फ्लैग हाथ में लेके मॉर्निंग में आते हैं, आफ्टरनून वो ज़मीन में कहीं पड़े मिलते हैं या फटे मिलते हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, है ना, उनको कभी ज़मीन में नहीं गिराना चाहिए। क्या आपने कभी स्कूल में या किसी और जगह पे देखा है नेशनल फ्लैग जो हम लोग स्कूल में होस्ट करते हैं उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता हो नीचे? नहीं, उसको विद रिस्पेक्ट हम लोग फ्लैग होस्टिंग करते हैं। देन इन इवनिंग वी विल पुल इट डाउन एंड कीप इट सेफ। सो देन वी मस्ट स्टे टुगेदर, we all have to stay together, and we must protect plants and animal. बच्चे फूल तोड़ देते हैं या खेलते हैं तो खेलते वक्त उनकी बॉल चली गई तो पेड़ों को नुकसान हो गया, पौधों को नुकसान हो गया। क्या आपको पता है पौधे भी रोते हैं? यस, उनके भी आंसू आते हैं जब उनको कोई बॉल लगती है। कहते हैं शाम के बाद कभी भी पौधों को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम पौधे सो जाते हैं। कुछ शैतान बच्चे
चलते फिरते ऐसे ही कहीं कोई एनिमल दिख गया, डॉग दिख गया, कोई और दिख गया, पत्थर फेंक के मार देते हैं। दैट इज़ वेरी बैड ना। या कोई फेस्टिवल है लाइक होली, तो उनके ऊपर कलर डाल देते हैं। वेरी बैड। आपके ऊपर कोई कलर ऐसे डाल देगा, आप नहीं कुछ कर पाओगे, गुस्सा आएगी ना। तो उनको भी तो बुरा लगता है। या दिवाली में उनके पास जाके पटाखे फोड़ देते हैं, ये भी तो गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम। Okay guys, so I hope that you all have clearly understand your fundamental duties. Now tell me, how do our duties change when we grow up? Yes, जब बड़े होते हैं तो सारी चीज़ें बदलती हैं. So when we grow up, we have more duties at home and work and also for country. जैसे कि ड्यूटीज़ बताई, घर में काम करना है ना, और स्कूल जाना है, वहाँ भी डिसिप्लिन फॉलो करना है, अपना होमवर्क टाइम पे करना है, यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए, पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, अपने काउंटर पार्ट्स को परेशान नहीं करना चाहिए, ओबे योर टीचर्स, घर में हेल्प योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, है ना, डोंट डू नॉटी थिंग्स, इंजॉय करना चाहिए, बट शैतानी थोड़ी बहुत, पर ऐसी शैतानी नहीं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। आपके छोटे भाई बहन की केयर करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि आप छोटे थे, केवल खेलना है, खाना है, घूमना है, सोना है। जब बड़े हुए तो आप किसी के पेरेंट्स बनते हैं, किसी के दीदी भैया अंकल आंटी, है ना, किसी न किसी रिलेशन में आप बनते हैं, तो अपने से छोटों के प्रति आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी ड्यूटीज़ चेंज हो जाती हैं। बचपन में कोई ड्यूटी होती है नहीं, बड़े में हो जाती है, और बड़े होते हैं तो फिर जो आपके छोटे बच्चे होते हैं या ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए ड्यूटी हो जाती है। इज़ इट? सो गाइस, टुडे we discuss lots of things. Now you will tell me, why is it important to do our duties? क्या ड्यूटी करना ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि it is important to do our duties because they help us become good people. है ना? अच्छे काम करेंगे तो अच्छे लोग बनेंगे, and we will become good citizens. So, how many of you going to follow their fundamental duties? And what would you have happened if we had only rights but no duties? So guys, if we only have rights and no duties, then we would have done what we felt like doing without thinking how it would affect others. Like here you can see, white rabbit or white bear is sitting quiet, and the other one, brown one, is poking him. That is wrong, is it? Then here he is playing loud music without caring of others. हमारा तेज़ म्यूज़िक हमारे पड़ोसियों को परेशान कर सकता है. For example, if we are free to play loud music, it is our duty to make sure we do not disturb anyone. म्यूज़िक तो एंजॉय करो, बट बी केयरफुल, आपके म्यूज़िक की वजह से किसी का नुकसान ना हो. कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, कोई स्टूडेंट है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है ना. कल बताया था, हमारी आज़ादी वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे की आज़ादी हमारी वजह से इफ़ेक्ट ना हो. एंड इफ़ वी आर फ्री टू वर्शिप एनी गॉड, we cannot stop others from worshipping different gods. This is also a duty. अगर हमें कोई नहीं रोकता किसी भी धर्म को अपनाने से, किसी भी भगवान की पूजा करने से, तो हमें भी दूसरों को कभी रोकना
नहीं चाहिए. Is it? So guys, it's time to your application time. What you learned today, now it's time to apply. So don't forget to study block 12 after this video. Then finish your S2 in nice handwriting and do PQs 6 and 8 in correct spelling and in nice handwriting. So guys, for today, thank you. Have a nice day. But before going to leave you, you can see some drawings. These are showing your fundamental rights and fundamental duties. So, do you like these drawings? Don't forget to tell me. Okay? And now it's time to say final bye and thank you. We will meet tomorrow again. Okay? So, bye.